means after graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. After getting graduation with honors, I got a very simple job as a clerk in a magnificent firm. Magnificent means very huge. The word is here magnificent. Magnificent law firm. Magnificent मतलब huge company. एक बहुत बड़ी कंपनी जो लॉ की कंपनी थी. There I got a job with getting graduation with honors. जब मैं ऑनर्स कर लिया ग्रेजुएशन डिग्री में, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, मैट्रिक इंटर देन ग्रेजुएशन. दिस इज a 3-year plan. Then I got a job that was clerk in a very big company. I was sent not to prepare legal briefs but to serve someone like a chief private detective. Means like a chief detective, I was sent to serve a someone. Like as a detective, I was sent to serve a someone by a court. Though I was not a detective, even my job was like as a detective. मुझे भेज दिया गया क्योंकि कोर्ट ने समन जारी किया था. उस समन को लेकर के मैं किसी को खोजने के लिए मैं चल पड़ा. I had to go to dirty and shadowy corner of the city to seek out my victims. Victim means prey. Victim means prey. जो मेरा प्रे था, शिकार जिसे पकड़ना था, उसके लिए मुझे डर्टी स्ट्रीट में जाना पड़ा. The street was very dirty and shadowy. बहुत गंदा खासा है गांव जहां मैं जा रहा था खोजने के. Corner of the city to seek out my victim. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I was full confidence. But the scene what it was there, they all beat me up. Beat मतलब कि हरा देना. I was full confident because I was a lawyer, clerk, graduate with honors. But all the confident get fall here after watching the scene of the place where I was looking for looking. जब मैं बहुत अपने आप पर गर्व करता था. मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एक क्लर्क हूँ, लेकिन जब मैंने देखा इस शहर की और गांव की हालात, तो मुझे क्या होना पड़ा. जो मेरा जितने कॉन्फिडेंस लेवल था वो क्या हो गया, फॉल डाउन, वो सब नीचे आ गया. Beat me up. I hated this unpleasant work. What the work I was given, I had. Because this work was not according to my wish. I didn't want to do, but I had to do. So I disliked it. It was unpleasant for me, not pleasant. Unpleasant. And the sight of the city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown. I even considered fleeing. Fleeing means run away. Fleeing means run away. I wanted to run away because the situation of the country was very bad. Once I made myself that I should run, but I didn't. Hometown, where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. I made myself that I should be with a good lawyer. This job is not suitable for me. So I wanted to go back home and wanted to do practice with a good lawyer.
ये जॉब पसंद नहीं था, उससे मेरी इच्छा हुई कि हम दूसरे लॉयर के पास जाकर के अपना प्रैक्टिस फिर से शुरू करें, क्योंकि मुझे ये जो टास्क दिया गया था ये मुझे पसंद नहीं आया। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Moulin to serve someone on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. I became very happy to know that the firm is going to send me 40 miles away from the town. I became very glad. मुझे खुशी हुई जान करके कि ये जो फॉर्म है वो मुझे शहर से 40 माइल दूर जो है कहीं भेज रहे हैं। यदि हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, सपोज आप जॉब कर रहे हैं गुड़गांव में, जॉब करते करते आपको बहुत साल हो गए और आपको एक मौका मिला, कंपनी ने बोला कि अब आपको अमेरिका जाना है, 10 दिन का काम है, वहां से निकाल करके चले आओ। हाउ डिड यू फील? वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि कंपनी ने मेरे को ऑफर दिया है कि 10 दिन के लिए काम अमेरिका में निपटा के आना है, सेम काम है कंपनी का। उसी प्रकार से कंपनी जो है आज उसे 40 किलोमीटर दूर है वो भेज रही है बाहर। सो दैट टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे शहर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। सिंपल कंट्री विलेज वे सीवियरली डिसअपॉइंटेड to a town called New Moulin to serve someone on a man called Oliver Lutkin. Oliver Lutkin serve someone, जो शमन था उसे सर्व करने के लिए मैं जा रहा था, क्योंकि लुटकिन के नाम से एक लेटर था कोर्ट में जिससे मुझे हाजिर करना था, क्योंकि वह लुटकिन एक केस में विटनेस का काम करता था। इसी केस में क्या था? वो विटनेस था। We needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters. Since all the letters sent by the court, he ignored. That's why it was a summon from the court, which I have to carry. He didn't give the answer of many letters sent by the court. So finally, the court served a summon. As I told you. बहुत सारे लेटर का जवाब नहीं दिया, तब कोर्ट ने क्या जारी किया? उसे समन जारी किया। और उसी सिलसिले में आज मुझे 40 माइल दूर जाना है, इसलिए मैं बहुत आज खुश हूं। When I got to New Moulin, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. I was very happy to know the news that I am going 40 miles away, but I became disappointed. शुरू में तो जान तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे 40 माइल दूर जा रहा हूँ घर से, वहाँ शहर से कहीं दूर जाने को मिल रहा है। बहुत खुश हुआ मैं स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे बहुत निराशा लगा कब? जब मैं वहाँ के सिचुएशन के बारे में जान पाया कि कैसा न्यू मूलिन है। I became disappointed. Let us see why here lawyer is becoming disappointed. Let us see here. क्यों निराश हो गए? Let's see. Its streets were a river of mud. Its street, यहाँ की जो गलियां थी वो कीचड़ से भरा हुआ था। रिवर ऑफ मड है, M-U-D मड। मड मतलब कीचड़। पहला बात हुआ डिसअपॉइंटेड होने का पहला रीजन है रिवर ऑफ मड, कीचड़ से भरा हुआ था। दूसरी क्या है? विद रो ऑफ वुडन शॉप, यहाँ जितनी भी दुकान थे ना लाइन से वो सब वुडन शॉप थे, मतलब पक्का परमानेंट शॉप नहीं था, वो जितने थे सब लकड़ी के दुकान थे। और क्या है? मोर इधर पेंटेड ए सॉवर ब्राउन, वो जो कलर था ना वो अट्रैक्टिव नहीं था, जो कलर था वो उसका वो सब क्या था? अट्रैक्टिव नहीं था। सॉवर, सॉवर मतलब खट्टा, कलर खट्टा तो नहीं हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे? नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव, डल, डल था। क्लियर? क्लियर? या और मोर, एनी मोर? व्हाट इट वाज मोर? अ बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और वो जो है बेयर ऑफ एनी पॉइंट, बेयर मतलब विदाउट,
Where means without. It was no pen. It was without pen. That's why I dislike this place since I had been living in the city. कोई शहर से जाएगा बंदा गांव में तो शहर तो पता है आपको चकाचौंध की दुनिया होती है। शहर में हर कुछ जो है सुंदर दिखाई पड़ते हैं, वो दीवार हो, पेंटिंग हो, घर हो, दुकान हो, मॉल हो, गली हो, सब तो बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। अचानक जब गांव में गए तो सारे जो उनकी खुशी था सिखान वो सब उनका दूर हो गया। ये सब सिचुएशन उन्होंने देखा। कितने कीचड़ हैं, जो वाल है वो बिना पेंट के हैं, दुकान जितने भी हैं वो सब जो है वो वुडन है। तो यह देख करके उनका जो खुशी था वो सब चला गया। Yes. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. What attracted me, it was a delivery man, though who was near the station. यदि मेरे को कोई अट्रैक्ट किया यहाँ पर तो वो कौन था बंदा? डिलीवरी मैन। कौन था डिलीवरी मैन? आई लाइक टेकिंग वेरी मच। केवल उस शहर उस गांव में मेरे को यही पसंद आया। कौन है ये? ड्राइवर। क्यों? लेट्स व्हाई ही लाइक्ड इट, लेट अस सी हियर। ओके, या डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. It is the bio speech of a hair driver. How he was looking here? वो कैसा दिखाई पड़ता है? यहाँ पे एक बायो स्केच है उसका। क्या बेटा? ना how he was looking there? कैसा दिखाई पड़ता था? वो देखने में कैसा था? वो बायो स्केच। क्लियर? या कहा कि 40 साल का था बंदा, गाल जो है लाल लाल था, बहुत प्रसन्न था, चीयरफुल मूड मतलब कि लाफिंग फेस था उसका, एंड थिक अबाउट द मिडल, अब थोड़ा सा मिडल में मोटा था, मतलब पेट उठ निकली हुई होगी इसलिए मिडल कह रहा है। क्लियर? या हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी मींस यूनिफॉर्म। व्हाट ही वोर इट वाज डर्टी एंड वेल वॉर्न। वेल वॉर्न मतलब पहना था अच्छा से लेकिन गंदा। जैसे ड्रेस कोड होते हैं ना, जो टैक्सी वाले होते हैं उनके ड्रेस कोड तो होते ही हैं, तो ड्रेस कोड में तो अच्छे लगते हैं वो, लेकिन वो कपड़ा क्या था उसका? गंदा था। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर मींस ही वाज वेरी फ्रेंडली, सो आई लाइक हिम। You felt at once that he liked people. If you meet, you felt that he liked people. एक बार यदि आपको उससे मिलने का मौका मिले तो आप समझ में आ जाता आपको कि वो बहुत मिलनसार है। और क्या था? बहुत मिलनसार। Now I told him to find a man named Oliver Lutkin. राइटर ने कहा उसे अपना काम के बारे में उन्होंने बता दिया कि व्हाट आई वांट। उन्होंने क्या कहा? आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिन। मुझे ओलिवर लुटकिन को ढूंढना है, मैं चाहता हूँ। है ड्राइवर को अपना काम बता दिए कि व्हाट आई वांट लुटकिन, ओलिवर लुटकिन। टर्न द पेज। Lutkins. I show him around here about an hour ago. लुटकिन को ढूंढ रहे हैं आप? अभी तो मैंने 1 घंटा पहले उसे देखा था। He told a lie. He lied here. झूठ बोला। क्या बोला उन्होंने? अभी 1 घंटा पहले तो मैंने देखा था। Lutkins. I show him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Hard fellow to catch means it is very difficult to catch him. उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? Always up to something or other. क्योंकि always he go here and there. वो हमेशा यहाँ वहाँ करते मतलब जगह चेंज करते रहता है। He change his places every time. That's clear? Yes. He is probably trying to start up a poker game in the back of a fish shop. He is probably trying to start up a poker game. वो फिश की दुकान पर
पोकर गेम खिलाने वाला है। अभी वह फ्रिज की दुकान पर कौन सा गेम खिलाने वाला है? पोकर का गेम खिलाने वाला है। आई शैल टेल यू व्हाई इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लोकिन। क्या लोकिन को ढूंढना जल्दी है क्या? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप जल्दीबाजी में हैं क्या? हेड ड्राइवर ने कहा लॉयर साहब को, राइटर को, क्या जल्दीबाजी है क्या इस काम में? तो देखेंगे। यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, जल्दीबाजी है। क्यों जल्दीबाजी है शर्मा जी? उसको जाना था ना वापस। यस, करेक्ट। क्यों जल्दीबाजी है? वो बोलते हैं यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। मुझे उस ट्रेन को पकड़ना है। आफ्टरनून में जो ट्रेन जाती है इधर से, दोपहर वाली ट्रेन पकड़ना है और मुझे वापस घर जाना है। ठीक है, वापस कहाँ जाना है? घर जाना है। यस स्टैंड यस। हु सेड दिस वन? किसने कहा ये बात? वकील ने। क्या कहा वकील ने? तुम्हें शाम की ट्रेन से घर जाना। शाम की ट्रेन? कहाँ शाम लिखा हुआ है? लिखा तो है। हाँ तो पढ़ो दोनों लाइन क्या? सब बच्चे चाह रहे हैं लाइन पढ़ो इतनी वाले। Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. कौन सा ट्रेन? शाम। Yes. आप ये बात कौन सा ट्रेन बेटा? कौन सा ट्रेन? दोपहर का। ये तो शाम लगा रहा है। बड़े भाई साहब बैठ जाइए। आफ्टरनून लिखा है। आफ्टरनून मीन्स दोपहर ट्रेन, इवनिंग वाली ट्रेन नहीं लिखा है। ओके गॉट, बी केयरफुल। ओके या राइट, क्लियर? तो बोला कि यस आई एम इन हरी बिकॉज आई हैव टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू होम। आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। यह बहुत ही सीक्रेट प्लान है, मेरे को अभी जाना होगा दोपहर वाली ट्रेन से। सो लेट्स आई शैल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट ए हैक। व्हाट आई हैव गॉट ए हैक, मैं जिस गाड़ी को मतलब हैक को जो मैंने हायर किया था, उसने कहा आई शैल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। आई शैल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। व्हाट आई हैव गॉट ए हैक, आई शैल गेट इट आउट and we can drive around together and find Lotkin. हम लोग एक साथ चलेंगे, उससे हम फाइंड आउट करेंगे। I know most of the places he hangs out. I know most of the places he hangs. He hangs मतलब moves, goes, visit. वो जो जो जगह पर विजिट करता है, I know, मुझे पता है। किसने कहा? हेड ड्राइवर ने कहा कि मेरे को पता है वो जहां जहां वो जाता है। हैक्स मतलब क्या है? विजिट्स, मतलब विजिट। वो जहां जहां विजिट करता है मुझे पता है, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा। क्लियर? यस। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. कहा कि वो इतना अच्छा था, उसका जो अफेक्शन था, प्रेम, मुझे प्रभावित कर दिया। किसका प्रेम? वो इतना अच्छा था कि मेरे को पसंद आ गया वो बंदा, क्योंकि हेल्पफुल था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तो मेरे को हेल्प करता है। सो आई लाइक हिम। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट His kindness was real. मेरे को मालूम था इसे बिजनेस चाहिए, but his kindness was real. His kindness was genuine. Really, he was kindness. I know he wanted business. राइटर ने कहा, ऐसा बात राइटर ने क्यों कहा?
सर राइटर ने ऐसा बात करके कि उसकी मदद कर रहा था मैं। He told कि he like his business, but his kindness. पैसा तो कोई भी लेगा, यदि आप हायर करेंगे कोई भी टैक्सी या ड्राइवर को तो पैसा तो सब लेगा, राइट? लेकिन जो उसके अंदर क्वालिटी थी वो मेरे को भा गया, मेरे को पसंद आया। जिससे आप अभी इस ब्लॉक से कोई भी गाड़ी हायर करेंगे तो पैसा तो उतना ही लेगा। आप गुड़गांव तक जाएंगे 40 रुपये सबको लेगा, 40 रुपये फिक्स है, हर कोई लेगा। लेकिन कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपके साथ बात करते हुए जाएगा, राइट? प्लस आपको जो है ना वो दौड़ाते हुए नहीं ले जाएगा। दौड़ा समझ रहे हैं? आपको 40 रुपये चाहिए ना, उड़ाते हुए लेके चला गया। पैसा तो उसे भी 40 रुपये ही मिलेगा। एक बंदा है, भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, तो आपसे बात भी कर लिया, आपको अच्छा लगा कि कम से कम ह्यूमैनिटी तो यही कहता है कि हम इसके साथ जाते हैं, उसको समझें। ह्यूमैनिटी क्या कहता है? यही ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी जो है कम से कम ये है। तो वो बोला कि पैसा तो बिजनेस में इसको चाहिए, बिजनेस तो मुझसे मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा, लेकिन हमें सबसे अच्छा लगा उसके बिहेवियर को, ही इज वेरी काइंड। कैसे? लेट अस I was glad the fair money would go to this good fellow. हमारा जो पैसा है ना वो अच्छे बंदा के पास जा रहा है, इससे मैं खुश हूँ। पैसा तो किसी को देना था, फेयर तो लगेगा, गाड़ी में है तो मतलब फेयर तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं खुश क्यों था कि मनी जो है कहाँ जा रहा है? गुड फेलो के पास, राइट? मान लो कोई आपके घर पर कोई बेगर आया, ओके, और आपने उससे पैसा दे दिया और आप देख रहे हैं कि मार्केट में जाकर वो तो धुआं उड़ा रहा है, तो आपको लगेगा मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर, मैं क्या करूं? कोई भिखारी आपसे पैसा ले और आगे जाकर के आराम से सिगरेट 25 रुपए वाला 20 रुपए जला के पिए, आपको लगेगा ना बेटा ये देखो ये अभी भीख मांगे मुझसे गया, मतलब मुझसे मतलब गरीबों से, और देखो ये क्या कर रहा है, इतनी महंगी महंगी सिगरेट पी रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ना आपको। तो बोले कि आज मैं खुश हूं कि मेरा पैसा सही जगह पर जाएगा। आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। फिर I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. I bargain, discount. Usually we do bargaining on the shop when we purchase something. कभी आपने bargain किया है बेटा? कब? क्या करते हो? जैसे क्या बोलते हो? How do you bargain? कैसे करते हो? कैसे bargain करते हो? bargaining समझ गए? अच्छा उसको बता देगा क्योंकि उसका बिजनेस है। bargaining कैसे होता है बेटा? सर बार्गेनिंग में किसी से पैसे कम करवाना होगा। हाँ हाँ समझिए bargaining होता है। जैसे मान लो आप गए और जींस आपको खरीदना है दुकान पर, ये भैया कितने की है? ये 850। 850 कर दो, लग नहीं आ अपना शादी दुकान वाला 400 ले रहा ये कपड़ा अच्छा नहीं है भैया, 850 कपड़ा इधर नहीं रहा। क्या आप देंगे? देखिए भैया हम सच्चा बता रहे हैं, ये 800 का नहीं है, क्या देंगे? देखिए मैं 500 नहीं, 500 का नहीं होगा। चलिए मैं आपके लिए 700 लगाता हूँ। तो ये क्या हुआ? बार्गेनिंग हुआ। आपको 500 में फिर आप चलने लगे तो बुला कर दिए, अच्छा ठीक है बहनी का समय है, अभी मैं बहनी कर रहा हूँ, ठीक है ना, है ना? तो बार्गेनिंग हो गया, गॉट बार्गेनिंग क्लियर। तो मैंने बार्गेनिंग किया
और 2 घंटे और $2 मैंने किया 1 घंटे का, लिखा है 1 घंटे का मैंने $2 रखवा लिया उससे कि तुम 2 घंटे मुझे ये करोगे, क्या लिखा हुआ $2 एन आवर। 1 घंटे का मैं कितना दूंगा? $2। बार्गेन हो गया है ना। अब डॉलर तो हमें पता नहीं है $1 में कितने होते हैं, कंट्री का अलग अलग, सबका अलग अलग शायद वैल्यू होता है। मतलब कोई जो ही नहीं है कि जो अमेरिका का डॉलर होगा वही रशिया का होगा, ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट होता है, सुनते हैं है ना। ठीक है, ओके, लेट इट गो। गॉट पॉइंट। तो क्या हुआ कि मैंने कर लिया और मैंने किया कि 1 घंटा मैं घूमूंगा आपकी कैरेज पर, गाड़ी पर, तो मैं आपको कितना दे दूंगा? क्लियर। बार्गेनिंग हो गया, बिजनेस भी उसका हो गया, बिजनेस की बात हो रही थी ना, बिजनेस हो गया ना यहाँ पे, एवरीथिंग डन। देन व्हाट हैपेंड? $1 and R, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheel। इस प्रकार अपने घर से जाकर के, जिसमें व्हील लगा हुआ है, पहिया, काले रंग का एक गाड़ी लाकर मेरे सामने रख दिया। On wheel, he remarked, "Well, young man, here is the carriage." ये गाड़ी है आपका। And he wide smile made me into an old friend। और उसकी हंसी मेरे को उसका पुराना दोस्त बना दिया। मतलब उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे को ऐसा लगा कि ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, उसके व्यवहार से। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkin for me। देखो यहाँ फिर राइटर ने कितना अच्छी बात कहा कि these villagers are so ready to help a stranger। ये जो गांव वाले होते हैं वो अजनबी को हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि गांव वाले कैसे ठगते हैं। ये बोल रहे हैं कि गांव वाले जो है अजनबी को हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं। स्ट्रेंजर मतलब क्या? अनकॉमन। स्ट्रेंजर मतलब अनकॉमन, अजनबी। लेकिन उन्हें तो पता नहीं है ना, अननोन, बस उन्हें तो पता नहीं है कि हमें ठग रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन ये तो सोच रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। He had already made it his own task to find Oliver Lutkin for me। मेरा टास्क वो अपना टास्क समझने लगा, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपना समझ गया, मेरा काम खुद वो करने लगा। मैं आराम से गाड़ी में बैठते रहता था, वो चारों तरफ पूछते चलता था, लुटकिन यहाँ है, लुटकिन वहां है, मैं चुपचाप मेरा काम को वो अपना काम बना लिया। क्लियर है? नहीं क्लियर? Now from here I would like to help from your side. Give the reading, then I will teach. Because maximum I have spoken in that class, so I am unable to speak much. So read it. Read. Then I will explain it. Yes. Yeah. Someone sings. Yeah, anybody can. No problem. Anybody can. He said, "I don't want to interfere your fellow, but my guess is that you want to collect some money from the kids. He never pays anybody a cent. He still owns me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. He's not really, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious, and if Thank you you. try to..." Carriage is ready means cart is ready, गाड़ी तैयार। Now let's see what he said, means hack driver what he is saying here. He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkin." हम आपकी जॉब में इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं। हाई ड्राइवर ने कहा, "I don't want to interfere in your job, but I guess you have come here to take the money from Lutkin."
लेकिन मुझे लगता है कि आप जो यहाँ आए हो लड़की से पैसा लेने के लिए।